हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। I have a most important chapter doing here major landform and their economical significance. There is a most important chapter here. A first point here, a mountains. There is a mountain is the most important, and here also discuss economical significance. The mountains is a plateau and plain. The border by present the day land features of the earth as a surface produced by the deformation of its crust. Among them to the mountain are the most awe-inspiring landform. About 27% of the earth as a surface is covered by the mountains. Generally, they are uplifted is the portions of the earth as a surface, which are much higher is the contrast and to be the surrounding area. But all the is uplifted or the elevated to area are not a mountain. In fact, there is a slope together give rise to a particular form of land, which we identify as the landform. From example, the related to the protection of Tibet, which is about 4,500 meters high above the sea level, or it is called to a plateau and not a mountain. There is a most important here. Example, the level of protection of the Tibet, which is about 4,500 meters high above the sea level. This is called to the plateau, not a mountain. It is maybe also remembered that the formation of the mountain range take a million of years. That is the most important here. It may be also remembered that the formation of the mountain range take a million of years. During this year, the internal force of the earth of lifting the land and the fighting against the erosion wearing it down. It is order to form one is a Mount Everest is the internal force must be pushed up to the land faster than the external force constantly is eroding. There is the most important. The Mount Everest internal force must be a push up and land faster than the external force constantly eroding. And therefore mountain are those uplifted to portions of the earth as a surface which have steps, slope and small summit area rising to more than thousands of meters above the sea level. The mountains have a maximum difference of the height between there is a high and low portions. That is the most important here. And the uplifted portion of the earth surface with the step, slope and the small summit area is rising above the 1000 meters are formed over a period of million of the years are called mountain. So what is a mountain? The mountain here uplifted portion of the earth as a surface with the step, slope and the small summited area arising above 1000 meters and formed over a period of million of years are called mountain. The here classification of the mountain, there is the most important here. On the basis of their mode of formation, the mountain has been to classified as a four type: the fold mountain, block mountain, volcanic mountain, and residual mountain. There is the most important here classification of mountain here, four types. The first here, fold mountain. The fold mountain we have a study in the last lesson how to fold are formed in the rock stirred by their internal earth movements. The mountain range mainly consists of lifted to the folded cemented rock are called fold mountain. So what is a fold mountain here? The mountain range mainly consists of folded sedimentary rock are called fold mountain. When these rocks are subjected to the horizontal computational force for a million of years, they get the bend into up to downfall, and this lead to be formation of the anticlines and syncline. Such earth movements occur from time to time and the left the fall to be considerable height, which result in the formation of fold mountain.
Therefore, mountain here, the mountain which have been to formed by uplift of the mainly to folded sedimentary rock straight under the compressional force are called fold mountains. Here show the map a distribution of the important afforded mountain on the world. There is the most important here. Name the rock mountains, Swaney mountains, mountains of Kulamka, that is the Himalaya, and the other. The Himalaya in the Asia, the Alps is the Europe's, the Rockies in the Northern America, and the Andes in the South America are the most prominent fold mountain of the world. And this mountain range were to formed during the most recent mountain is a buildings period. They are known as the young fold mountain. Soon off there is a mountain range, for example, Himalayas are still rising. There is the most important. Important also here, next point. Come here, a block mountain. The block mountain is the most important here. Block mountain are also formed by the internal earth movement. There is a block mountain is formed here internal earth movements. When the force of the tension act on the rock, there create a fault in them. When the land between to the two almost parallel fault is a rise above to the adjoining area. It is a form of block mountain. It may be also occur when the land on the outer side of the fault slips down to leaving an arising block between them. The rock composing shear fault level may be of flattenings and even folded. Block mountain is also called to the hardest. And the Vosges of the forest is a block forest, is a mountain, is a Germany, is a Syria, is a Nevada, and the North America are the typically example of block mountain. Here show the block mountain or horses. They are the most important here. Show the diagrams of different is here layer on their mountain. There is the most important diagram here. The next here is a volcanic mountains. Their volcanic mountain is also important. We have learned it is a preview lesson that is the interior of the earth extremely there is a hot. Due to the high temperature, deep inside the earth the rock turned into a molten magma. When this molten rock is a material is ejected to the earth as a surface during the volcanic eruptions. It is accumulated around the event and maybe take the form of the cone. The height of the cone increasing with the each eruptions and it is take the form of mountain. As these mountains are formed by the accumulation of the volcanic material. They are known as the volcanic mountains or mountain of the accumulations is a mount is a Mona, known is a Heavis Iceland. The mount is a Popa, is a Manemar, is a Vesus, is a Italis, is a Tokopaxis, is a Ecuador, and the Fuji Yama in the Japan are example of the volcanic mountains. Here show the clear a volcanic mountain here. There is a volcanic mountain. The next here, decidual mountain. Decidual mountain here the weathering and different agent of erosions. River, wind, glacier, etc. are the constantly acting on their earth as a crust. As soon as elevated mountains range appear on the earth as a surface, the agent of the gradation begins. There is a work of leaving it down. To a large extent, the process of wearing down to depends on the slope and the structure of the rock. After thousands of years, soft rock are worn down into the sand and the hard rock are left standing up in the area that has been reduced in a height. And these are called residual mountain. The hill like a Nilgiri and Prasant, the Rajmahal and the Aravallis in India, for example of residual mountain. Friend, here the most important example here, Nilgiri, Prasant, Rajmahal and the Aravalli hill in India. There is example of residual mountain. Here show the most important is dual mountain here. There is a most important diagram. There is a first,
सेकेंड एंड थर्ड देयर आर माउंटेन रिजिडुअल माउंटेन एयर। यहाँ पर जो दोस्तों हम अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर कर रहे हैं, प्रमुख के असल रूप और उनका आर्थिक महत्व। देखिए इसमें हम तीन के विषय में पढ़ेंगे, पठार, पर्वत और मैदान के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आया है पॉइंट वो है पर्वत। देखिए पर्वत के विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसकी जो है आर्थिक महत्व पर भी हम प्रकाश डालेंगे, तो इससे जो है इम्पोर्टेंट हमारे साथ रहेगा। तो चलिए देखते हैं पर्वत में क्या कुछ बताया गया और क्या समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कहते हैं धरातल पर विद्यमान तीन विस्तृत जो स्थल रूप है, या तो पठार हो सकती है, पर्वत हो सकती है, मैदान हो सकती है, जो भूपट्टी के जो है विरूपण का परिणाम है। इसमें से पर्वत सबसे रहस्यमयी रचना होती है। पर्वत की रचना जो हुई है बहुत ही रहस्यमयी हुई है। पर्वतों द्वारा पृथ्वी की संपूर्ण सतह का जो है 27% भाग घिरा हुआ है। पर्वत पृथ्वी की सतह के ऊपर उठे हुए भाग है जो आसपास की भूमि से बहुत ही ऊंचे हैं, परंतु धरातल के सभी ऊपर उठे हुए भाग पर्वत नहीं कहलाते हैं। यानी उठे हुए भाग जो है पर्वत नहीं कहलाते हैं। किसी भी असल रूप के पहचानने के लिए ऊंचाई और ढाल दोनों को जो है सम्मिलित किया जाता है। यानी हर उठा हुआ चीज़ को जो है हम पर्वत नहीं कह सकते। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ज्योग्राफिकली दिमाग लगाना पड़ेगा। कहते हैं ऊंचाई और ढाल दोनों को सम्मिलित इसमें किया जाता है और इसे नाते जो है तिब्बत की जो है ऊपर उठी हुई भूमि पर्वत नहीं कहलाएगी। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 4500 मीटर है, तो इसको हम पर्वत नहीं कहेंगे, ये एक मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पर्वत श्रेणियों के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। देखिए पर्वत जो है एकाएक नहीं बनता, इसको बनने में बहुत लाखों साल लगते हैं और इस लंबी अवधि में आंतरिक बल जो है भूमि के ऊपर उठने में व्यस्त रहते हैं। यानी धीरे धीरे जो है भूमि के आंतरिक पार्ट जो है ऊपर की तरफ उठते रहते हैं। तो इसके विपरीत बाहरी बल इस पर ऊपरी जो उठी भूमि काटने, छाटने और अवरुद्ध करने में जुटे हुए रहते हैं और इस तरह जो है पर्वत का निर्माण होता है। माउंट एवरेस्ट ऐसे ऊंचे एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण तभी हो पाता है जब आंतरिक बल का जो है पर्वत जो निर्माणकारी या जमीन के ऊपर उठाने वाले कार्य जो है बाहरी बलों के अपर्दन कार्य की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से होता हो। अंत पर्वत धरातल के ऊपर उठे हुए ये भूभाग है, इसके ढाल जो है तीव्र होते हैं और समुद्री तट से जो लगभग 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं। पर्वत की समुद्र की सतह से सामान्य ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक मानी जा सकती है। स्थानीय उच्चवाच लक्षणों में पर्वत की एक ऐसा असल रूप है जिसका उच्चतम और न्यूनतम भागों के बीच जो है सर्वाधिक अंतर होता है। निर्माण क्रिया के आधार पर पर्वतों को निम्न 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है वल्य पर्वत, दूसरा है खंड पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और उसके बाद है अवशिष्ट पर्वत। तो ये चारों पर्वत जो है काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इन पर्वतों के बारे में। सबसे पहले हमारे समक्ष जो है बलीय पर्वत है। बलित पर्वत क्या है? हमने पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जो है पर्वताधार शैलों में बलन पड़ते हैं। यानी बलन पड़ना स्वाभाविक बात है। बलित जो है पर्वताधार शैलों के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप बनी पर्वत श्रेणियों के बलित पर्वत कहते हैं। बलित जो है पर्वताधार शैलों पर लाखों वर्ष तक आंतरिक जो है क्षैतिज उत्पीड़न बल लगे रहते हैं, तो वे मुड़ जाते हैं और उनमें जो है उद्वलन और जो है नतवलन पड़ जाते हैं। कालांतर में ये जो है अपनीतित और अवनीतियों के रूप में विकसित हो जाती हैं और इस प्रकार की जो है हलचलें समय समय पर होती ही रहती है। और जब बलित शैल बहुत ऊंची प्राप्त कर लेते हैं तो बल्य पर्वत का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है बलित पर्वत का जन्म होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। अब देखिए यही बात अगर हम समझना चाहें तो संपीड़न बलों के परिणाम स्वरूप बनी बलित पर्वताधार शैलों के ऊपर उठने की बलित पर्वत कहते हैं। यानी संपीड़न बलों के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसे हम बलित पर्वत कहते हैं। एशिया के हिमालय जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यूरोप के जो है अल्प्स, उत्तर अमेरिका के रॉकी और दक्षिण अमेरिका के एंडीज संसार के प्रमुख बलित पर्वत में से माना जाता है और इन पर्वतों का निर्माण अत्यंत आधुनिक पर्वत निर्माणकारी युग में हुआ है। अंत यह सभी नवीन जो है बलित पर्वतों के नाम से भी जाना जाता है
और इसमें से कुछ जो है पर्वत श्रेणी जैसे हिमालय पर्वत तथा अब भी जो है ऊपर उठ रहे हैं, यानी हिमालय पर्वत देखा जाए तो अभी भी जो है ऊंचा होता चला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो संसार के प्रमुख वलित पर्वत दिखाया गया है। एटलस हो गया, एंडीज हो गया, रॉकी पर्वतमाला हो गया, एप्लेसियन हो गया, इरोली पर्वत हो गया, इकोनलिसान हो गया, हिमालय हो गया। सारे के सारे पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण स्वरूप है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है खंड पर्वत। खंड पर्वत का निर्माण भी पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण ही होता है। जब प्रदार्थ शैल पर तनाव बल लगते हैं, जब प्रदार्थ शैल होते हैं उस पर जब तनाव पड़ते हैं तो उनमें दरार या भ्रश पड़ जाते हैं। जब लगभग दो समांतर भ्रंशों के बीच की भूमि आसपास की भूमि की तुलना में काफ़ी ऊपर उठ जाता है तो उस ऊपर उठी भूमि को जो है खंड पर्वत या जो भ्रशस्थ पर्वत या भ्रशखंड कहते हैं। खंड पर्वत का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब दोनों भ्रशों के बाहर की भूमि नीचे बैठ जाती है और अवधों के बीच की भूमि उठ रही होती जाती है। खंड पर्वत को जो है होस्ट भी कहते हैं और खंड पर्वत में शैलों की परत वलित अथवा समतल में भी कोई भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है फ्रांस के वैसेज और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और उत्तरी अमेरिका के सिरो रानेवाद खंड पर्वत की विशेष उदाहरण में से एक माना जा सकता है। देखिए खंड पर्वत जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइड जो है ज़मीन धंस गई है और दूसरी साइड जो है ज़मीन ऑटोमेटिक ऊपर उठ रही है। तो ये खंड पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए यहाँ पर एरो से भी दिखाया गया कि एक तरफ धंस रही है, एक तरफ उठ रही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी जैसे नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, जिसके विषय में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या तो भूगर्भ बहुत गर्म है। ये तो आपको भी पता है कि जो आंतरिक भाग है बहुत ही गर्म है। भूगर्भ के गहरे भागों में अत्यधिक तापमान के कारण ठोस शैले द्रव्य जो है मैग्मा में बदल जाते हैं। जब यह पिघला हुआ शैल पदार्थ ज्वालामुखी के उद्गार में जो है भूगर्भ से धरातल पर आता है तो वह मुख के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और ये जमकर जो है शंकु का रूप धारण कर सकता है। ज्वालामुखी के प्रत्येक उद्गार के साथ इस शंकु की ऊंचाई बढ़ती ही चली जाती है और इस प्रकार वह पर्वत का रूप ले लेता है। पर्वत जो ज्वालामुखी से निकले पदार्थों के जमा होने से बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। संग्रहित पर्वत जो पर्वत भी कहलाते हैं, इसको संग्रहित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हवाई द्वीपों का जो है मेनालुआ, मन्नेमार, बर्मा का जो है माउंट पोपा, इटली का जो है वेसुविलियस, इक्वेडोर का जो है कैटोपेक्सी, जापान का जो है फ्यूजियो यामा और ज्वालामुखी पर्वतों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल जो है कई मान्य यूपीएससी एग्जाम के बच्चों के लिए भी अत्यंत जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो यही क्वेश्चन जो है यूपीएस में ही पूछे जाते हैं, तो बच्चे यहाँ वहाँ जो है भटक रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ज्वालामुखी पर्वत जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्शाने की कोशिश किया गया है। ये जो मैग्मा निकलती है तो आसपास इकट्ठा होगा तो ये पर्वत का रूप धारण करेगा, एक जनरली सी बात है। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है एक पर्वत निर्माण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है। उसके पश्चात जो हमारा अगला है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या है? अपक्षय या अपर्दन के विभिन्न कारक हैं। नदियाँ, पवन, हिमानी आदि धरातल पर जो है निरंतर कार्य करते ही रहते हैं। ये भूपट्टी की ऊपरी समतल को कमजोर करने के साथ उसे काटते छांटते रहते हैं। जैसे कि धरातल पर किसी पर्वत श्रेणी का उद्भव होता है तो क्रमण के कारक जो है अपर्दन द्वारा उसे नीचा करना शुरू कर देते हैं। अपर्दन कार्य शैलों की बनावट पर बहुत ही निर्भर करता है। हजारों वर्ष के बाद मुलायम शैलों कटकर बह जाते हैं तथा कठोर शैलों बने भूभाग जो है उच्च भूखंडों के रूप में ही खड़े रहते हैं। इन्हें ही हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यानी देखा जाए तो उच्च भूखंडों के रूप में ही खड़े रहते हैं, जिसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत की अगर देखा जाए तो नीलगिरी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और पार्श्वनाथ तथा जो है राजमहल की पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वतों के सबसे अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि अवशिष्ट पर्वत आपने देखा नहीं है तो डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कुछ इसी प्रकार के जो है पर्वत आपको नज़र आएगी, तो इसे ही हम अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। The next topic is the most important here, the economical significance of mountain.
So what is the important here or significance of mountain here? Economical. There, mountain are usually 2 years of flowing bay. First here, the storehouse of resource. There is a most important here. The first economical value here, a storehouse of resource. Mountain are the storehouse of natural resource. Large resource of the minerals are found in mountains. The Appalachian range in the United States is well known for the coal and limestone deposit. We get timber, lac, medicinally herbs, and woods for making a pulp from the forest of the mountain. Tea and coffee plantation and some fruits is a orchid have to be developed of mountain and hill slope. There is a most economical value of mountain here. The next year, generation of hydroelectricity. That is also important of economical value of mountain. Hydroelectricity is generated from to the water of the perennial river in their mountain range. The mountainous countries like Japan, Italy, and Switzerland, which is suffer from the shortage of coal, have developed the hydroelectricity. That is the most important. The important here economical value of here mountain. And third here abundant source of water. The perennial of river rising in the snow feed or heavier rain feed of mountain are the important source of water. They help in the promoting the irrigations and provided to water for many other uses. The next here is a formation of fertility plan. There is the most important here. The river that originate in the high mountain region bearing slide along with their water to the lower valley. This help in the formation of fertility plan. Fertility plan here is the most important. The greatest avenue plan of the northern India has been formed by the rivers Ganga, Satluj, and Brahmaputra. That is the most important. The next year, natural political founters. The mountain range do act as a natural political founters between countries and protect from their invasions of some extent. The Himalaya has formed a political frontier between India and China. There is the most important here is a natural political frontier. There is an example of India and China border. There is a political frontiers. And the next year, effect on the climate. Mountainous is area have a lower temperature and they serve to the climatic divide between two adjoining regions. The Himalaya, for example, for the very year to be a moment of cold wind from a Central Asia toward the Indian subcontinent, and they also force the south west monsoon to the ascent and the causing to the rainfall on the southern slope. And the last economical value of mountain here, tourist center. There is the most important for the common for the all. The tourist center. The pleasant is the climate and the beautiful sceneries of the mountain have led to their development as a center of tourist attraction. The tourist and hotel industries get additionally is encouragement in such a region. Simla, Nainital, Mussoorie, and Srinagar are some of the important hill stations of India which attract tourists all over the world. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है पर्वत का आर्थिक महत्व। देखिए, अगर आपने पर्वत के बारे में जाना है तो पर्वत के आर्थिक महत्व के बारे में जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि हम पर्वतों की आर्थिक महत्व के विषय में बात करें तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा और जानना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर हम इसके आर्थिक महत्व के विषय में चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि जो है संसाधनों के भंडार। पर्वत जो है कई संसाधनों के भंडार के रूप में देखा जा सकता है। ये कई एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्वत का आर्थिक महत्व जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं संसाधनों के भंडार। सबसे पहले हमारा संसाधनों के भंडार तो पर्वत प्राकृतिक संपदा से भंडार है, यानी पर्वत देखा जाए तो प्राकृतिक संपदा के सबसे बड़ा भंडार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है अपलेशियंस पर्वतमाला कोयला और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है।
पर्वत पर उगने वाले कई प्रकार के वनों में हमें विभिन्न उद्योगों के लिए जो है इमारती लकड़ी, लाख, गोंद, जड़ी बूटियाँ तथा कागज उद्योग के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। पर्वतीय ढलानों पर चाय या जो है फलों की कृषि का विकास हुआ है, जो कि काफ़ी आर्थिक तौर पे इसका जो है बहुत ही बेनिफिट है। उसके पश्चात अगर हम बात करें जल विद्युत उत्पादन के लिए, तो कहते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए आजकल जो है माउंटेनों का बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। कैसे उपयोग किया जाता है? देखिए, पर्वतीय प्रदेश में बहने वाली नदियों के जल प्रांतों द्वारा जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन रहती है, पर्वत रहती है, तो ऊपर से पानी गिरेगी, तो जनरल सी बात है हम इसका विद्युत उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। कोयले की कमी जो है वाले जो है पर्वतीय देश जैसे जापान, इटली, स्विट्जरलैंड में जो है जल विद्युत का जो है यहाँ पर पर्वतों के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, और ये कई मायने में जो है अपना जो इन्होंने विकसित किया है। उसके बाद है जल के समीप भंडार। जल के असीमित भंडार यहाँ पाया जाता है। कहते हैं ऊंचे जो है हिमाच्छादित या भारी वर्षा वाले पर्वतों से निकलने वाली सदाबहीन नद या जल का सबसे बड़ा भंडार होता है। उनसे नहरें निकल कर खेतों की सिंचाई की जा सकती है, जिससे विभिन्न फसलों का अधिक उत्पादन होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपजाऊ मैदान जो है मैदानों के निर्माण में सहायक। देखिए, पर्वत जो होती है उपजाऊ मैदानों के निर्माण में कई मायने में इम्पोर्टेंट होती है। ऊंचे पर्वत से निकलने वाली नदियां कटाव द्वारा मिट्टी बहाकर निचली घाटियों में जमा कर जाती है, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। आपने देखा भी होगा कि पहाड़ों से जितने भी गाड़ आती है, मिट्टी आती है, वो हमारे समतल में बिछ जाती है, और ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है जो कृषि के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान गंगा, सतलुज और जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे अच्छी देन है। उसके पश्चात अगर हम राजनीतिक सीमाओं की बात करें, तो पर्वत दो देशों के बीच जो है राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं तथा जो है कुछ हद तक आपसी आक्रमण से भी बचाते हैं। हिमालय पर्वतमाला भारत और चीन के बीच राजनीतिक सीमा बनाए हुए हैं। इससे जो है उनको जो है भारत पर अटैक करने में भी बहुत ही दुष्कर कार्य लगते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जलवायु पर प्रभाव। देखिए, पर्वतों पर नीचे तापमान पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पर्वतों पर जाने से जो होता है वहाँ पर काफ़ी नीचा तापमान पाया जाता है, यानी बहुत ठंड होता है। पर्वत दो प्रदेशों के बीच जलवायु विभाजक का कार्य भी करता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वतमाला मध्य एशिया से आने वाली गतिशील पवनों को भारत में आने से रोकती है। वो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को भी रोक कर उन्हें दक्षिण ढलानों पर वर्षा करने के लिए बाध्य करती है। तो पर्वत का जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जलवायु के रूप में देखना जो है स्वाभाविक बात रहता है। उसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट जो है पर्यटन का केंद्र स्थान। देखिए, पर्यटन कहते हैं किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए जो है पर्यटन होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो भारत का एक वर्ड है अतिथि देवो भव, क्योंकि जितना भी हमारे देश में अतिथि आएंगे दूसरे देशों से, इतना ही हमारा देश जो है इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा। तो पर्वतमाला जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात अगर करें पर्वतमाला के केंद्र यानी पर्यटन केंद्र के रूप में, तो प्राकृतिक सौंदर्य केंद्र या स्वास्थ्यवर्धक स्थान होने के कारण बहुत से पर्वतीय स्थल जो है पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर पर्यटन एवं होटल व्यवसाय विकसित हो जाते हैं। भारत के अगर शिमला देखा जाए, नैनीताल देखा जाए, मसूरी, श्रीनगर पर्वतीय नगरों के उदाहरण हैं। आपने कभी भी अगर नाम देखा हुआ कहाँ जाना है तो आप शिमला, नैनीताल, मसूरी और श्रीनगर की ही बात करते हैं, क्योंकि ये स्थल जो है पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक है और देखने योग्य है। यहाँ तक कि इंडिया के लोग तो आकर्षित होते ही होते हैं, प्लस विदेश के लोग भी इसको देखने के लिए दूर दराज से यहाँ पर जो है पर्यटक के रूप में आते हैं, और ये सारी दुनिया के जो है सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करती है और काफ़ी उनको जो है अच्छा लगता है। देयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हेयर द नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्लेट्यूस। There's a plateau is the most important here. The plateaus cover about 80% of the earth as a surface, and this is a landform has a large developed area on the top, unlike a mountain, and has a nearly even a surface out there. Every often river is a streams cut out of deep valley and the grass in a plateau region. In a place of the original smooth and topograph, it is then to the change into a restricted is a plateau. A plateau, however, remaining is a much higher above the sea level of the nearby area. Thus, the normally 600 meters
above the sea level. There are plateau of Tibet and the Bolivia is more than 3,600 meters above the sea level. That is the most important here. Next here is a classification of the plateaus. This is the most important here, a classification of the plateaus. On the basis of the geographical location and structure of rock, the plateaus can be classified as a three types. There is a first here intermountains plateaus, and second is a piedmont plateaus, and the third is a continental plateaus. There is a most important, and the first here the intermountain plateaus. There is the most important here. The plateaus which are the borderings. The fold mountain range partly is a fully enclosed within them are the intermountains plateaus. The vertical movements arise this extensive is a landform and nearby the horizontal rock to thousands of meters above the sea level. The extensive and the over 4,500 meter high plateaus of the Tibet is one such example. There is a most important here 4,500 meters highly plateaus of the Tibet. There is a so example. It is surrounded by the folded mountain like Himalaya, Karakorams, Kunam, and the Tanusa on their two sides. The plateaus of the Colorado is another well known as the example over 2 kilometers high into which the river has cut the Grand Canyons and it is series of the gorges. The plateaus of the Mexico and Bolivia and the Iran and all over example of these types of the plateaus. Here show the important is the intermountainous plateaus. There is the most important. There is a show the arrow line. There is a intermountainous plateaus. There show the clear of the problem for the mind. There is this diagram. The next here is a piedmont plateaus. There is the most important piedmontal plateaus. A plateau that is situated at the fold of mountains and bounded on the other side by plain are on the since called the piedmontal plateaus. There is a figure there are plateaus of the Malwa in India and those of Patagonians is facing the Atlantica and the ocean and the Afrosians and the situated between to the Appalachians is a mountain and Antarctica is coastal plain in the USA. Or there is example. In there is a case of area once high has now to be been reduced by the various agents of evasions. For these reasons, and these are also called to the plateaus of generations. Generations is the plateaus is also called to the piedmont plateaus. Here show the piedmont plateaus here, the mountain and piedmont plateaus here. And the next here the sea level. There is a clear for your mind the piedmont plateaus here. The next here is a continental plateaus. There is a third and the last the continental plateaus there. These are formed either by their extensive mountains uplifted or by there is a spread of the horizontal basis. Lava sheet is a completely covered the original topograph to be a great depth. The volcanic lava is a cover a plateaus of the Maharashtra in India and Sankum River the plateaus is the northern western USA are the example of this type. And these are also called the plateaus of the accumulation. There is the most important here. And the all continental plateaus show on the erupted to the evolution in the contract to their nearby the lowland of the sea. As compared to the other, these plateaus is cover a vast area like the Great Indian Plateaus, and this is the Arabia and Spain, Greenland, Africa, and Australia, and there may be a title on their side of without any disturbance and the horizontal nature of the underlying rock structure, as it is the case of the Great Indian Plateaus. There is the most important here. Here show the continental plateaus here. There is the most important. There is the two-sided sea here show and the center of the plateaus. There is the most important diagram here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर आया है प्रमुख स्थल रूप और उनका आर्थिक महत्व, इसके अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है पठार है। देखिए पठार प्लेटूस यानी पठार का जो है क्या महत्व है और पठार इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। पठार पृथ्वी की सतह का लगभग 18% भाग घेरे हुआ है
और पठार का एक बहुत ही विस्तृत भू ऊंचा भाग है, जिसके सबसे ऊपर का भाग जो है पर्वत के विपरीत लंबा चौड़ा और लगभग समतल होता है। पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां पठार पर प्रायः गहरी घाटियां और महाखंड बनाती हैं, और इस प्रकार पठार का जो है मौलिक समतल रूप जो है कटा फटा या ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। फिर भी पठार जो है आसपास के क्षेत्र या समुद्री तल से काफ़ी ऊंचा होता है। पठार की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर मानी जा सकती है, परंतु तिब्बत और वेलसिला जैसे पठार समुद्री तल से जो है 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचे माने जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पठार अगर देखा जाए तो 18% जो है हमारे पृथ्वी का सतह को जो है घेर रखा है, और कहते हैं पठार जो है समुद्री तल से काफ़ी ऊंचा होता है, यानी पठार की ऊंचाई लगभग समुद्र तल से जो होता है 600 मीटर ऊपर मानी जाती है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पठारों का वर्गीकरण। देखिए पठारों का वर्गीकरण जो है मैक्सिमम 3 भागों में किया जा सकता है, यानी भौगोलिक स्थिति एवं संरचना के आधार पर पठारों को 3 श्रेणियों में बांटने की प्रावधान है। एक तो हमारा समक्ष आता है अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा होता है गिरिपद पठार, और उसके बाद तीसरा जो होता है महाद्वीपीय पठार। चलिए देखते हैं पहले पठार क्या कहता है हमें। हमारे समक्ष जो आया है अंतरा पर्वतीय पठार। देखिए चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणी से पूरी तरह से या आंशिक रूप से घिरे हुए भाग को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अंतरा पठार जो होती है ऊर्ध्व हलचलें लगभग क्षैतिज संतरों वाली शैलियों को बहुत ही बड़े भूभागों को जो है समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचा उठा देती है। संसार के अधिकांश ऊंचे पठार इसी श्रेणी में आते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास मानी जाती है। तिब्बत का जो है विस्तृत एवं 450 मीटर ऊंचा पठार ऐसे ही एक उदाहरण है, और यह वर्णित पर्वत जैसे हिमालय कराकोरम्स क्यूलून्स जो है तिलिसान से और 2 और से घिरा हुआ होता है, यानी देखा जाए दोनों ओर से जो है काफ़ी घिरा हुआ होता है। क्लोरोडोरो दूसरा चीड़ परिचिली उदाहरण है जो 1 किलोमीटर से अधिक ऊंचा होता है, जिसे नदी में जो है ग्रैंड कैनियन तथा अन्य महाखंडों को काट कर बना दिया जाता है। और मस्को और बोलिविया ईरान और हंगरी इसी प्रकार के पठारों के अन्य उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि इस तरह के जो है पठारों की जो ऊंचाई होती है 3000 मीटर से ऊपर होती है, और ये जो है तिब्बत का विस्तृत जो है यहाँ 4500 मीटर ऊंचा पठार उठाया है, जैसे उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। अब देखते हैं इसका डायग्राम क्या बताता है। डायग्राम में से और भी क्लैरिटी होगी। देखिए यहाँ पर जो है अंतरा पर्वतीय पठार को दर्शाया गया है। अगर आप देख सकते हो तो दोनों साइड जो है ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और बीच में जो है अंतरा पर्वतीय पठार है। उसके नीचे जो है अगर देखा जाए तो सी लेवल दिखाया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, यानी पहाड़ों के बीच में जो श्रेणी बनती है, जो क्षेत्र होते हैं, उसी को यह पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2 यहाँ पर श्रेणियाँ दिखाई गई है और दोनों के बीच में एक जो है पठार क्षेत्र दिखाया गया है। तो इसी 2 श्रेणियों के बीच में जो क्षेत्र बनते हैं उसी को ही हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। तो ये डायग्राम आपको जो है माइंड को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि पठार होता कैसा है 2 पर्वतों के बीच में। तो ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी विस्तृत था। अगला जो हमारे समक्ष आया है गिरिपद। देखिए गिरिपद पठार या इसको हम पेडमॉन्ट भी कहते हैं, पेडमॉन्ट पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये कहते हैं पर्वत के जो है पदों में स्थित अथवा पर्वतमाला से जुड़े हुए जो है पठारों से जिनकी दूसरी ओर मैदान समुद्र में गिरिपद पठार कहलाता है। यानी आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आखिर इसमें बात क्या कही गई है। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो पर्वत के पादों में स्थित, यानी पर्वत के पैरों में, ठीक है, पैरों के पास स्थित, ठीक है, अथवा जो है पर्वतमाला से जुड़े हुए, यानी अगर मान लीजिए कोई कहीं पर्वतमाला है और उसके जगह कुछ क्षेत्र जो है समतल है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, गिरिपद पठार। यानी गिरी मतलब क्या होता है, ऊंचा ऊंचा पर्वत श्रृंखलाएं, और पद मतलब उसके पैरों के नीचे। तो इसका मतलब समझ में गए होंगे आपके लिए क्लियर कि जो है बड़े बड़े जो है पर्वतमाला, उसके जो है नीचे जो पठार क्षेत्र उपस्थित है, जो समतल जगह है, उसी को हम गिरिपद पठार कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समझ के लिए था। देखिए क्षेत्रफल कम होने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है कि अगर 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अगर उसके बीच में अगर हम देखें तो कम ही होता है, यानी क्षेत्रफल बहुत ही कम ही रहेगा। और इन पठारों का निर्माण कठोर शैलों से होते हैं, यानी मजबूत शैलों से जो होता है इसका निर्माण होता है। भारत में मलबा पठार, दक्षिण अमेरिका में जो है पेंटागोनिया का पठार, जिसके एक और अंटार्कटिका महासागर और
संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है प्लेटोसियंस पर्वत और अंटार्कटिका तटीय मैदान के बीच प्लेटोनिशियंस पठार इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये किसी समय बहुत ऊंचे थे, परंतु अब जो है अपरदन के बहुत से कारक द्वारा घिस दिए गए हैं। इसी कारणवश इन्हें जो है अपरदन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये पठार जो है अपरदन के कारण घिस गए हैं, जैसे अपरदन के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो गिरिपथ पठार के बारे में आप समझ गए होंगे कि पर्वतों के जो पैरों के नीचे होते हैं उन क्षेत्रों को हम जो है क्या कहते हैं, गिरिपथ पठार कहते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है महाद्वीपीय पठार। देखिए महाद्वीपीय पठार क्या होता है। धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या बड़े भूभाग पर जो है लावा की परतों के काफ़ी ऊंचाई तक जाने से महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो साधारण शब्दों में धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर, यानी धरातल होती है वहाँ पर बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या जो है बड़े भूभाग पर लावा की परतों के काफ़ी ऊंचाई तक जाने से महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होती है। महाराष्ट्र का लावा पठार उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नेक नदी पठार इस प्रकार के पठारों के उदाहरण है। यानी भारत में महाराष्ट्र के पास है और अमेरिका में देखा जाए तो ये नदी पठार स्नेहक जो होती है वहाँ पाया जाता है। इनको निक्षेपण के पठार भी कहते हैं। महाद्वीपीय पठार अपने आसपास के क्षेत्रों तथा समुद्री तल से स्पष्ट ऊंचे उठे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार के पठारों का विस्तार सबसे अधिक होता है और भारत का विशाल पठार जो है ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार, स्पेन, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के पठार, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के पठार महाद्वीपीय पठारों के सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये जो है महाद्वीपीय पठार जो है कई मानने में हर क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। अब ये जो है महाद्वीपीय पठार दिखने में कैसा लगता है, चलिए देखते हैं कैसा लगता है ये। देखिए महाद्वीपीय पठार जो होती है कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ही जो है पर्वत श्रृंखलाएँ होती है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरी साइड भी पर्वत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में मेंशन नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है महाद्वीपीय पठार ये गलत लिखा गया है। ये एक्चुअली में जो है गिरिपथ पठार के जो है एग्जाम्पल है। कहते हैं देखिए दोस्तों गलतियाँ जो है बुक में भी बहुत जगह देखने को मिलता है, तो इस बात को सुधारना ही सही रहेगा। महाद्वीपीय पठार जो होती है दोनों साइड से पर्वत श्रृंखलाएँ होती है और बीच के छोटे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है वो गिरिपथ पठार होता है। अब हम देख लेते हैं कि महाद्वीपीय पठार कैसा होता है। चलिए देखते हैं महाद्वीपीय पठार कैसा होता है। देखिए महाद्वीप पठार जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दिया हुआ है, इसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। और इसके दोनों साइड अगर आप देखोगे तो समुद्र होते हैं। समुद्र के बीच में जो होता है ये महाद्वीपीय पठार जो है ऑटोमेटिक उठ जाता है। इसको हम टापू भी कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई जगह टापू भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं टापू के जैसे ही होते हैं, चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए होते हैं और बीच में जो होते हैं ये महाद्वीपीय पठार उठे हुए होते हैं। तो ये जो कई मानने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि टूरिस्ट जो होते हैं, टूरिज़म्स जितने भी होते हैं वो इन ऐसे जगहों पर जो है काफ़ी आकर्षित होते हैं और समय बिताने के लिए ये ऐसे जगह पर जाना ही पसंद करते हैं। तो इसके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखिए, अगर हम जैसे कि बात की है पर्यटकों की, तो आप जो हम देखेंगे कि इसका जो है इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा कि इसका इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है plateaus का। The next topic here are important economical value of plateaus. There is the most important here. There is the important also is the economical value. We observe there is a prevention of plateaus are the show or development of agriculture and buildings of the road on their plateaus. And this factor is also explained why the plateaus are the especially populated is the nerve thinless, and plateaus are the extremely useful to the mankind in the flowing bay. Who is the bay here? The first bay here, the storehouse of the mineral. There is a first bay, the storehouse of mineral. Most of the minerals in the world are found in the plateaus. Is beside there is the extension of the mineral is relative azure on the plateaus, and these minerals are the indispensable or raw materials for our industries. We get a gold from to the plateaus of Western Australia, copper,
diamond and the gold from the plateaus of Africa, and the coal, iron, manganese, and mica from the Chota Nagpur plateaus in India. That is the most important here, or economical value of the plateaus. The first here is storehouse of the mineral. There is storehouse of mineral here. The stores here are diamond, coppers, and the gold. That is also important in India here, Chota Nagpur plateaus in India. There is the most important. There is a coal, iron, magnesium, and the mica here present. They are the most important. The next year is a generation of the hydel power. There is the most important also, the river falling down to the edges of the plateaus from the waterfalls. And this waterfalls provide to the ideal side of the generating of hydropower. Next here is a cool climate. There is a cool climate is the most important. The higher part of plateaus or even to the tropical and subtropical region have a cool climate. You know, they have a track to the Europeans to be settled. There are the developed their economics. Example, South and East Africa. That is the most important. The useful for the animal rearing and agriculture. The plateaus have a large as grassland area suitable for the animal rearings, especially of sheep, goat, and cattle. They provide to variety of products such as the wool, milk, meat, and the hair and skin. The lava plateaus is compared to the all other plateaus are the richest is agriculture since their soil is very fertilized. That is the most important. Here the soil is a fertility. There is a mostly, and there is a product here a wool, milk, meats, and the huddle of the useful animal rearing of agriculture here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मानव जीवन में पठारों का महत्व। देखिए मानव जीवन में पठारों का क्या महत्व हो सकता है। कहते हैं लंबे समय से लगातार अपरदन के कारण पठारों के तल प्राय जो है असमतल हो जाते हैं और जिस कारण यहाँ जो है आवागमन के साधनों तथा जनसंख्या का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। फिर भी पठार मानव के लिए बहुत उपयोगी है। पठारों ने मानव जीवन के निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। तो ये कई मायने में इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देखा जाए यहाँ पर पहली हमें उपयोगिता के रूप में तो कहते हैं खनिजों के भंडार है। यहाँ पर कहते हैं विश्व के अधिकांश खनिज पठारों से ही प्राप्त होते हैं। जितना भी विश्व में खनिज मिलता है वो पठार क्षेत्रों से ही मिलता है। जिन खनिजों पर हमारे उद्योग कच्चे माल के लिए निर्भर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार में सोना, अफ्रीका के पठार में तांबा, हीरा और सोना तथा भारत के पठारों में कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पठारों का कितना महत्व है। कहते हैं पठारों से ही सभी चीज़ों जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, जो हमारे कच्चे माल मिलते हैं, सारे के सारे जो होते हैं पठारों से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो कई मायनों में जो है इसका जो है इकोनॉमिकल जो है महत्व बढ़ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जल विद्युत उत्पादन। देखिए जल विद्युत उत्पादन पठारों के ढालों पर नदियां जल जो है प्रपात बनाती है और यह जल जो है प्राप्त जल विद्युत उत्पादन के आदर्श स्थल माने जाते हैं। देखिए देखा जाए तो पठार जो है ढालों पर नदियां बनाते हैं। देखो ढाल रहती है और ढाल की वजह से क्या होता है बिजली उत्पादन करने के लिए एक आदर्श क्षेत्र मिल जाता है जहाँ पर बिजली बनाना बहुत ही सुगम हो जाता है। उसके बाद है ठंडी जलवायु। देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ठंडी जलवायु मिलती है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पठारों के ऊंचे भाग ठंडी जलवायु के कारण जो है यूरोपवासियों को काफ़ी आकर्षित करती है और यहाँ रहकर उन्होंने जो है अर्थव्यवस्था का काफ़ी विकास भी किया है। उदाहरण दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, ये जो है ठंडी जलवायु और ये पठारी क्षेत्र है जैसे कि दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट है। पशुओं चरण के लिए उपयोगी। देखिए ऐसे पठार क्षेत्र जो होते हैं पशुओं के लिए जो है अच्छे खासी जो है उनके लिए भोजन मिल जाते हैं। पठारी भाग जो है पशु चारण के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ये भेड़ बकरी के पालन के लिए बहुत ही उपयोगी क्षेत्र माने जाते हैं। भेड़ बकरियों से जो है वस्त्रों के लिए ऊन तथा भोजन के लिए दूध और मांस की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। लावा से बने पठार उपजाऊ है। अंततः उन पर जो है अन्य पठारों की अपेक्षा कृषि का अधिक विकास हुआ है। तो देखा जाए पशुचारण के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। And the next topic here is the most important here, a plan. The plan here a most important landform found in the Earth's surface. A low lying relative to flat and slightly rolling land surface with a very gently slope and the minimum local relief is called a plan. The plan here a flat, slightly rolling land surface
a very gently slope. A maximum local relief is called plain. Plains occupy about 55% of the earth as a surface. Most of the plains has been formed by the deposition of the sedimentaries both down by the river. Beside the river, some plains have also been formed by the action of the winds, moving ice, tectonic activities, and the plains has an average height of the less than 200 meters. That is the most important. And the important here, a low-lying, relative flat and slightly rolling land surface with a very gently slope and minimum. There is a local relief is called a plain. That is the most important here. The next topic here are types of plan. That is the most important here. What is the types of plan here? The plan can be classified into the following types. There is a first here structure plan, erosional plan, and depositional plan. There is the most important here are the three types. The first here structural plan. The structural plan here, this plan are mainly formed by the uplift of the part of the sea floor or continental shelf, and these are located on the borders of the almost all the major continent and the southeastern plan of the United States formed by there is uplifted of part of the Gulf. Mexico is an example of the types of plan, and the structure plans may be also be formed by the subsidence of area. Once the plan is a central lowland of the Australia, that is the most important here. And next here, erosional plan. That is the most important, and this plan are formed by a continuous and a long time erosion of all shoulder of the upland. The surface of such a plan is hardly smooth, and these are therefore also called a plan plans, and which mean the almost a plan. The Canadians and the studied and there is the best Siberian plan are example of the original plan. There is important here. The plan formed by the uplifted or subsidence on the area is called a structural plan, and the plan formed by the continuous long-term erosion of land is called erosional plan. There is the most important here. The next here is depositional plan. The fragment of the soil, regolith, and the bedrock that is removed from to parents rock marks and transported and deposit to the is where they make an entirely different set of surface feature. The depositional is a landform when the plants are the formed by the river deposit. They are called to the riverines and available plan. The Indo-Genetics plan of the Indian subcontinent. The Havaho plan is northern China. There is a Lombardy plan of Po River is Italy, and there are Ganga Brahmaputra Delta plan is a Bangladesh. Are example of the Albion plan. There is the most important. The deposition of the sedimentary in a lake give a rise to the Lecturians plan or the lake plan. There is a valley of the Kashmir, and that is a Manipur are example of two most of permanent Lecturians plan in India. When the plant is formed by the glacier is deposited, they are called a glacier or draft plan. A plan is Canada and the northern western Europe are example of glacier plan. When the winds is the major agent of deposition, and they are called loose plan. The loose plans of the northern western China are formed by the deposit of the loss of airborne fine dust particle. That is the most important. And the point here, depositional plan are formed by the deposition of the sediment both and down over the river is a glacier and wind. And next year, depositional plan are subdivided into the avils, lecturines is a glaciers, and the loss of plan. That is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम आपको पता ही है कि हम प्रमुख्य जो है स्वरूप और उनका आर्थिक महत्व के विषय में जो है चैप्टर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग जो हमारा अगला टॉपिक आया है मैदान। देखिए, मैदान कई मायने में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। धरातल पर पाई जाने वाले समस्त जो है संस्कृतियों के मैदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी धरातल पर पाई जाने वाली समस्त जो है संस्कृतियों में मैदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और यहाँ जो है इंसान रहते हैं। अंतिम जो है मध्य ढाल वाली लगभग सपाट और
जो लहरीला विभिन्न भूमि का मैदान कहते हैं और मैदान धरातल के लगभग 55% भाग पर फैला हुआ है। देखा जाए तो 55% जो है काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है और संसार के अधिकांश मैदान नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनाए गए हैं। यानी संसार के अधिकांश मैदान जो है मिट्टी द्वारा जो है, जो नदियों द्वारा मिट्टी जो लाए जाते हैं उसके द्वारा बनाए गए हैं। मैदान की औसत ऊंचाई लगभग 200 मीटर होती है, यानी 200 मीटर होती है इसकी ऊंचाई। नदियों के अलावा कुछ मैदान का निर्माण जो है वायु, ज्वालामुखी और हिमानी द्वारा भी होता है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है कि इसकी मैदानों का जो निर्माण होता है वायु, ज्वालामुखी और हिमानी द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। अति मध्य ढाल वाली लगभग सपाट और शहरी निम्न भूमि को जो है काफ़ी मैदान कहते हैं। तो आप इस डेफिनेशन के रूप में इसको याद कर सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मैदान का वर्गीकरण। देखिए, मैदानों का वर्गीकरण के रूप में अगर हम देखें तो बनावट के आधार पर मैदान का वर्गीकरण निम्न प्रकार हो सकता है। पहला तो यही होगा संरचनात्मक मैदान, अपर्दन द्वारा बने मैदान, निक्षेपण द्वारा बने मैदान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संरचनात्मक मैदान। यानी संरचनात्मक मैदान क्या है? कहते हैं इन जो है मैदानों का निर्माण मुख्यतः सागरीय तल अथवा जो है महाद्वीपीय जो है निम्नगमन तट के उत्थान के कारण हुआ है। कहते हैं ऐसे मैदान प्राय सभी महाद्वीपों के किनारे पर मिलते हैं। मेक्सिको की खाड़ी से सहारे फैली संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी मैदान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भूमि के निचले धंसने के कारण भी जो है संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के जो है मध्यवर्ती मैदान का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। तो संरचनात्मक मैदान जो है कई मायने में कई क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अपर्दन द्वारा बने मैदान। देखिए, अपर्दन द्वारा कैसे मैदान बनते हैं? पृथ्वी के धरातल पर जो है निरंतर अपर्दन की प्रक्रिया चलती ही रहती है। देखा जाए तो पृथ्वी पर धरातल पर जो है अपर्दन की प्रक्रिया चलती ही रहती है, जिससे जो है दीर्घकाल में पर्वत तथा पठार, नदी, पवन और हिमानी जैसे कारकों द्वारा घिस कर मैदानों में परिणत हो जाते हैं। और इस प्रकार बने मैदान पूर्णतः समतल नहीं होते हैं, कठोर शैलों के ढीले बीच बीच में खड़े रहते हैं। उत्तरी कनाडा जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान अपर्दन द्वारा बनाए मैदान है। अपर्दन द्वारा बनाए मैदानों की जो है संप्राय भूमि जो है पेनिप्लान भी कहते हैं। इसे हम पेनिप्लान भी कहते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है निक्षेपण द्वारा बने मैदान। आखिर निक्षेपण द्वारा कैसा मैदान बनता है? ऐसे मैदान का निर्माण जो है नदी, हिमानी, पवन आदि तथा जो है संतुलन के कारकों द्वारा ढोले अवसादों से, झील या समुद्र जैसे गतों के भरने से होता है। यानी मान लीजिए अगर बहुत अधिक मात्रा में गाढ़ आ रहा है तो गाढ़ के कारण क्या होगा, बड़े बड़े क्षेत्र जो होंगे भर जाएंगे और भरने से जो है इस तरह का जो है मैदान का निर्माण होना स्वाभाविक बात है। कहते हैं झील या समुद्र जैसे गतों के भरने से ही ऐसा होता है। जब मैदानों का जो है निर्माण नदी द्वारा ढोए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे हम नदीकृत या जलोद मैदान कहते हैं। तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, जलोद मैदान। अगर आपको समझ में आ गया होगा, जलोद मैदान बहुत आसान है कि अपने साथ जो है कई तरह के जो है गत लेके आते हैं, तो ये धीरे धीरे भरते रहते हैं और भरे हुए जो क्षेत्र होते हैं जो इससे बनते मैदान है उसे ही हम जलोद मैदान कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सिंधु गंगा का मैदान, उत्तरी चीन में जो है अंगोहो का मैदान, इटली में पो नदी द्वारा बनाया गया लोम्बार्डी का मैदान और बांग्लादेश का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मैदान जलोद मैदानों के विशेष उदाहरण हुआ है, जो कि इसी तरह के बनाए गए मैदानों में से एक है। जब मैदानों का निर्माण झील में अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे हम सरोवरी या झील मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सरोवरी या झील मैदान कहते हैं। कश्मीर और मणिपुर की घाटियां भारत में सरोवरी मैदानों के सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कश्मीर और मणिपुर की घाटी भारत जो है सरोवरी मैदान सबसे इम्पोर्टेंट और जो है अच्छा एग्जाम्पल है। जब मैदान का निर्माण हिमानी द्वारा ढोए पदार्थों के निक्षेपण से होता है तो उसे हम हिमानीकृत या हिमोड मैदान भी कहते हैं, क्योंकि हिमानी द्वारा ढोए गए कारणों से होता है, इसलिए इसको हम हिमानीकृत या हिमोड मैदान कहते हैं। कनाडा और उत्तर पश्चिमी यूरोप के मैदान हिमानीकृत मैदानों के सबसे अच्छा उदाहरण है।
जब निक्षेपण द्वारा प्रमुख कारक पवन होते हैं तो उसमें लोएस्ट मैदान बनते हैं। उत्तरी पश्चिमी चीन के लोएस्ट मैदान का निर्माण पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल सूक्ष्म धूल कणों के निक्षेपण से हुआ है, जो कि काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर सारांश के रूप में देखा जा सकता है कि महाद्वीपीय निम्नगमन तट के उत्थान अथवा भूमि के निचले धंसने के कारण बने हैं मैदान को हम सृजनात्मक मैदान कहते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सृजनात्मक मैदान किसे कहते हैं? जो महाद्वीपीय निम्नगमन तट के उत्थान और भूमि के नीचे धंसने के कारण बने मैदानों को हम सृजनात्मक मैदान कहते हैं। पर्वत और पठारों के लंबे समय तक अपर्दन से बने मैदानों को अपर्दन जनित मैदान या संप्राय भूमि भी कहलाती है। नदी, हिमानी, पवन आदि तल संतुलन के कारकों द्वारा ढोए पदार्थों के जमाव से बने मैदानों को निक्षेपण द्वारा बने मैदान भी कहते हैं। निक्षेपण द्वारा बने मैदानों के प्रकार हैं जलोढ़ मैदान, सरोवरी मैदान, हिमानीकृत मैदान और लोएस्ट मैदान। तो ये काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट मैदान है जो कि निर्माण इसी कारणों से होता है। The next important topic here is the most important economical value of plant. That is the most important. The first here point arrive here of fertile soil. That is the most important. Fertile soil here, the plant is generally have a deep and fertile soil. Fertile soil is sign to plant have a flat surface, the means of irrigation and easily developed. Both these factors have made the plant agriculturally so important and that they are often called food basket of world. What is it called here? Food basket of the world. Then who is the fertility soil? And the next here, growth of industries. The rich agriculture resource, especially of aluminum plants, have helped in their growth of agro-based industry. Agro-based industry is the growth of industries in the agriculture is aluminum plant. And this has been to implement of the millions of people and the registered as a market, increasing in the national production and per capita income. Sandra plants are thickly is populated, plenty of labor is available for their intensive of cultivation and the supplying workforce for the industries. That is the most important for the growth of industry by the plant. And the next year expansion of the means of transport, that is also important. Since the plants has uneven surface is a favor the buildings of road, airport and the lining down of the railway lines. That is the most important. The next here is a center of civilization. There is also important here of economical value of plan. There is a center of civilization. The plan has been to the center of many modern and ancient civilizations. The major river valley of civilization of the world have flourished in their plan only. Hence, they are apt to the refer to as the cradles and civilization. For the example, there are civilization of the Indo and Nile Valley. There is the most important for a center civilization. The next important here are setting up to city and town, easy mean of transport and land. The growth of agriculture and industry in the plan has been resulting in the setting up to the expansion of city and town. There are most developed trade centers and sports of the world are found in the plan only. Rome, Chaco, Calcutta, Yangon and Rango, as Varanasi, Paris and other famous cities are situated in the plan. As much as 80% of the world has a population live in the plan. That is the most important setting of the cities of town. That is also important. And the point here, the plans are useful to the man due to their fertile soil, growth of industries and development of transport, setting up to city and town and making them attractive as a cadres of human civilization. That is the most important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर मैदानों का आर्थिक महत्व। अब देखिए मैदानों का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है। अगर देखा जाए तो मैदानों का आर्थिक महत्व जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हम सब मैदानी क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं और कहते हैं अधिक से अधिक सिटी जो होती है मैदानी क्षेत्र में ही रहते हैं, जहाँ पर लोग निवास करते हैं।
ठीक है, तो पहला तो यही आ जाता है कि उपजाऊ मृदा यानी मिट्टी उपजाऊ होती है। मैदानों की जो मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ तथा जो है गहरी होती है और समतल होने के कारण सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास हो जाता है और इन दोनों कारणों से मैदानों में कृषि सर्वाधिक विकसित होती है। इसलिए मैदानों को संसार का अन्न भंडार भी कहा जा सकता है। यानी अन्न भंडार किसे कहते हैं? में जो है उपजाऊ भूमि मृदा को, जो कि मैदानी भाग होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उद्योग का विकास। देखिए, उद्योग का विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं समतल उपजाऊ एवं सिंचाई की सुविधाओं के कारण मैदानों में कृषि प्रधान उद्योग का विकास हुआ है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है तथा राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी मात्रा में बढ़ती है। अधिक जनसंख्या के कारण जो है कृषि तथा उद्योग के लिए सस्ते श्रमिक भी यहाँ पर जो है आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है यातायात की सुविधाएं। कहते हैं मैदानों का तल जो है समतल होने के कारण यहाँ जो है आवागमन के साधन, रेल मार्ग, सड़कें, हवाई अड्डे आदि का बनना जो है सुविधाजनक होता है। तो इसलिए जो है मैदानी क्षेत्र का इतना अधिक महत्व भी रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष सभ्यताओं के केंद्र। देखिए, मैदान जो है प्राचीन एवं आधुनिक सभ्यताओं के केंद्र के रूप में देखा जाता है। विश्व के प्रमुख नदी घाटी जो है सभ्यताओं का उद्भव मैदानों में से ही हुआ है। यानी देखा जाए तो जितना भी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो सारे के सारे जो है मैदानी क्षेत्र से हुआ है, क्योंकि इसे घाटी सभ्यता का उद्भव कहा जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता और नील घाटी सभ्यता इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल माना जा सकता है। यदि बात करें हम अगली पॉइंट की, तो यही बात दर्शाता है कि नगरों की सभ्यता। कहते हैं रेल, सड़क तथा नदियाँ द्वारा जो यातायात की सुविधाओं तथा कृषि और उद्योग के विकास ने नगरों की जो है स्थापना और विकास को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। मैदानों में विश्व के सबसे विकसित व्यापारिक नगर और पतन स्थित होती है और रोम, टोक्यो, कोलकाता, रंगून, कानपुर तथा पेरिस आदि इसी मैदानी में ही स्थित है। तो ये कई मायने में जो है इम्पोर्टेंट भी रखता है। अगर हम पॉइंट को यहाँ बात करें तो पॉइंट में यही बात दर्शाया गया है कि मैदानों का आर्थिक महत्व क्या है। देखिए, समतल और उपजाऊ जो है मृदा की प्राप्ति, उद्योग के विकास की सुविधा, आगमन के साधनों के विस्तार की सुविधा, प्राचीन एवं आधुनिक सभ्यताओं केंद्र, व्यापारिक नगरों और बंदरगाहों की स्थापना जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट है।